Hello students, welcome back in our geography class. Today we are going to continue our 6th chapter water resources. And our today's topic is prevention of water pollution. Yesterday we are discussing about the conservation and management of water resource. So what are the system which is used to prevent the water pollution? We know that due to the pollution in water, the upcoming years we are having a kind of scarcity. We are facing a kind of a scarcity of water. So, is it any type of measures which we apply and find out the solution? Let us discuss. So, available water resource are degrading rapidly, right? जो भी वाटर रिसोर्स अवेलेबल है वो लगातार डिग्रेड हो रहा है, यानी कि उसका जो प्योरिटी लेवल है वो डिग्रेड हो रही है. The major rivers of the country generally retain better water quality in less densely populated upper stretches in hilly areas. But in plains, river water is used intensively for irrigation, drinking, domestic and industrial purposes. The drains carrying agricultural fertilizers and insecticides, domestic solid liquid waste and industrial effluents join the rivers. And the concentration of pollution in rivers especially remains very high during the summer season when flow of water is low. स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि वाटर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, बहुत तेजी से डिग्रेड हो रही है. अगर हम अपने इंडियन रिवर्स की बात करें तो जब ये ओरिजिनेट होती हैं हिली एरियाज में, तब इनका पोल्यूशन लेवल इतना नहीं होता है जितना ये पोल्यूशन लेवल प्लेन एरियाज में आते आते इंक्रीज हो जाता है. हिली एरियाज में ये रिवर काफ़ी प्योर होती हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट नज़र आती हैं ड्यू टू लेस इम्प्योरिटी. लेकिन प्लेन एरियाज में क्योंकि पॉपुलेशन कवर ज़्यादा है और बहुत सारे तरीके से वाटर को यूज़ किया जाता है, फॉर डोमेस्टिक यूज़, फॉर एग्रीकल्चरल यूज़ एंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, तो इन सब का वेस्टेज जो है ये सब कुछ डम्प्ड होता है इन रिवर्स में. So the concentration of pollution in rivers especially remains very high during the summer. और समर सीजन में तो इस पोल्यूटेंट्स का जो भी रेशो है, कंसंट्रेशन जो है वो और बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि समर में सीजन फ्लो होता है वाटर का, पानी कम हो जाता है. The Central Pollution Control Board CPCB in collaboration with the State Pollution Board has been monitoring water quality of national aquatic resource at 507 stations. आजकल गवर्नमेंट ने इस पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर बोर्ड्स बनाए हैं. इनके 507 स्टेशंस हैं और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिलकर के मॉनिटर कर रहे हैं वाटर की इम्प्योरिटी को. द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम दीज स्टेशंस show that the organic and bacterial contamination continues to be a main source of pollution in rivers. तो इन्होंने अपना एक डेटा पब्लिश किया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाटर में ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से हो रहा है. The Yamuna River is the most polluted river in the country between Delhi and Etawah. और सबसे ज़्यादा polluted river का नाम है यमुना. और ये यमुना रिवर जो है वो दिल्ली और इटावा के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेटेड, काफ़ी ज़्यादा polluted है. Other severely polluted rivers are the Sabarmati at Ahmedabad, Gujarat, the Gomti at Lucknow, Uttar Pradesh, the Kali and the Adyar, Kali in West Bengal, Kali in Bihar, the Adyar, Kaum, entire stretches, the Vegai at Madurai and the Musi of Hyderabad. ये रिवर्स साउदर्न स्टेट्स की हैं. एंड द गंगा एट कानपुर एंड वाराणसी, द मेजर रिवर ऑफ आवर इंडिया. It is also polluted in the area between Kanpur and Varanasi in Uttar Pradesh.
Groundwater pollution has occurred due to high concentration during even, ये तो सारी बातें थी फ्लोइंग वाटर की। बेटा हमारा ग्राउंड वाटर भी आजकल पोल्यूट होता जा रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वेरी हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। So the legislative provision such as the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 implemented and Environmental Protection Act 1986 have not been implemented effectively। और ये इसलिए हो रहा है, हालांकि गवर्नमेंट ने एक्ट भी बना रखे हैं, कानून भी बनाया हुआ है, लेकिन ये एक्ट इतना ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। So the result is that in 1997 251 polluting industries were located along the rivers and lakes। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1997 में 251 polluting industries जो हैं इनको लोकेट कर दिया गया रिवर और लेक्स के किनारे। The Water Cess Act 1977 meant to reduce pollution has also made marginal impacts। There is a strong need to generate public awareness about importance of water and impacts of water pollution। पैराग्राफ ये कहता है बेटा कि जिस तरीके से पोल्यूशन का लेवल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंटल पॉलिसीज पर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इंडिविजुअली भी अवेयरनेस और कुछ एक्शन लेने चाहिए ताकि इफेक्टिव तरीके से pollutants को रिड्यूस किया जा सके, बेसिकली फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस। राइट नाउ रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। हम सभी इतनी देर में ये तो समझ चुके हैं कि हमारा वाटर जो है, फ्लोइंग वाटर और एज वेल एज ग्राउंड वाटर एज वेल, बोथ आर polluted, they are polluting। So it is very necessary to recycle and reuse of water will implement it। So another way through which we can improve fresh water availability is by recycle। अब हमारे पास दूसरा तरीका जो है वो है रिसाइकलिंग या रीयूज करना वाटर का, ताकि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। Use of water of lesser quality such as reclaimed wastewater would be an attractive option for industries for cooling and firefighting to reduce their water cost। के लिए क्या हो सकता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां पर वाटर का इस्तेमाल मशीनों को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर उन वाटर को, जिस वाटर का इस्तेमाल मशीन को ठंडा करने में किया गया है, उसको कूल डाउन किया जाए और वापस से उसको रीयूज कर लिया जाए, तो इससे बहुत सारे वाटर की वेस्टेज होने से बचाई जा सकती है। सिमिलरली इन अर्बन एरियाज वाटर आफ्टर बाथिंग एंड वॉशिंग कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग। कपड़े वगैरह धोने के बाद में वाटर का इस्तेमाल गार्डनिंग में कर लिया जाए। वाटर यूज फॉर वॉशिंग व्हीकल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गार्डनिंग which could conserve better quality of water for drinking purpose। Currently recycling of water is practiced on limited scale। हालांकि आजकल रिसाइकलिंग हो रही है वाटर की, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी चीजें इन्वेस्ट की जा रही हैं, लेकिन काफी लिमिटेड स्केल पर। तो however there is enormous scope for replenishing water through recycling, right? अगर हम रिसाइकलिंग का प्रोसेस अपनाएं तो हम लोग काफी हद तक वाटर को बचा सकते हैं। क्या उपाय किए जाएं इस वाटर को इस तरीके से वेस्ट होने से बचाने के लिए? तो वाटर शेड मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम which is used for maintaining, for management, efficient management and conservation of surface water and groundwater as well। Watershed management basically refers to efficient management and conservation of surface and groundwater resources। It involves prevention of runoff and storage and recharge of groundwater। Watershed management में क्या होता है, बारिश के सीजन में जो भी वाटर टेरेसेस पर इकट्ठा होता है, ठीक है, उसको ग्राउंड वाटर में इंसर्ट करवा के और फिर यूज करना, लाइक प्रोपर कॉलेशन टैंक्स, रिचार्ज वेल एटसेट्रा।
However, in broad sense, watershed management include conservation, regeneration and judicious use of all resources. Watershed management अपने आप में कंजर्वेशन, रीजनरेशन और जुडिशियस यूज है किसका? वाटर का. Natural like land, water, plants and animals and human within a watershed. Watershed management aims at bringing about balance between natural resources. Watershed बनाने का, इस मैनेजमेंट के लागू करने का मेन एम क्या है? ताकि हम लोग बैलेंस कर सकें नेचुरल रिसोर्सेज को और ऑन द हैंड एंड सोसाइटी ऑन द अदर. So the success of watershed development largely depend upon whom? On community participation. Watershed management तभी पॉसिबल है जब उसमें कम्युनिटी बराबर का हिस्सा ले. The central and state government had initiated many watershed development programs in the country. Some of these are being implemented. आज गवर्नमेंट ने ऐसे ही वाटरशेड मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए. उनमें से हरियाली इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. याद रखना है ये टर्म बेटा, हरियाली क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव वाटरशेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है. स्पॉन्सर किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. एंड what it aims at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation. The project is being executed by Gram Panchayat with people's participation. क्योंकि ये वाटरशेड हरियाली प्रोग्राम गांव में लॉन्च हुआ है, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहा है ग्राम पंचायत और वहां के लोगों के कंट्रीब्यूशन के साथ में. एक और नया प्रोग्राम है नीरू मीरू, वाटर एंड यू. नीरू मीन्स वाटर, मीरू मीन्स अस, तुम. So this program is initiated in Andhra Pradesh and Arveri Pani Sansad in Alwar, Rajasthan have taken up a construction of various water harvesting structures such as percolation tanks, dugout ponds, johar, check dams, etc. through people's participation. Tamil Nadu has made a water harvesting structure in the houses. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्ट्रक्चर घरों में ही कंपल्सरी बिहाफ पर डेवलप करने के लिए रेगुलेट किया है. नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स, और रेगुलेट किया है कि कोई भी घर बिना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कंस्ट्रक्ट नहीं होगा. So watershed development projects in some areas have been successful in rejuvenating environment and economy. तो गवर्नमेंट के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है ये सक्सेसफुल भी हो रहे हैं. इनकी वजह से काफ़ी एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों को ही सक्सेस मिल रहा है. देयर आर ओनली अ फ्यू सक्सेस स्टोरी नोटिसेबल राइट नाउ. इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस द प्रोग्राम इज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज. हालांकि सक्सेस की बहुत ही कम स्टोरीज हैं. अभी भी ये जो प्रोग्राम है ये अपने नेसेंट यानी कि अपकमिंग स्टार्टिंग प्राइमरी स्टेज में है. तो देयर इज अ नीड टू जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट. करना क्या है? हमें जनरेट करना है अवेयरनेस को, ताकि लोगों में वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए अवेयरनेस आए और लोग बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लें. राइट? क्योंकि अकेले गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से वर्क नहीं कर सकती. So this integrated water resource management approach, water availability can be ensured the sustainable basis. Right? Hope you guys understand the term well. So students, tomorrow we will discuss about another system of water management, that is rainwater harvesting. But the rainwater harvesting I will discuss in my next video. Till then, thank you and have a nice day.